जी, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। लास्ट लेक्चर आई होप कि आप लोगों ने देख लिया हो। उसमें वी टॉक्ड अबाउट एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वी टॉक्ड अबाउट द एजाइल मैनिफेस्टो, वी टॉक्ड अबाउट things that are related to agile manifesto, and obviously we will continue that lecture today. We talked about agile method, we talked about the differences between plan driven and agile development, we talked about extreme programming as well, and we started talking about agile project management as well. So again, let's continue today from there onwards. So I will just give you a brief review of what we discussed in the last lecture. The recording is available on Google Classroom. If you have not already gone through it, please go through it. We talked about rapid software development. Why is the need for rapid software development, and why do we need to develop पंखा खोल देना rapidly? Right? Why is it that we need to develop the softwares rapidly? Right? So this is what we talked about in the last class as well. So moving on, there are agile methods, the manifesto, the methods. What would they do? They would focus on the code rather than the design. They are based on an iterative approach to software development. They are interested to deliver working software quickly and evolve this quickly to meet challenges, the changing challenges of the changing requirements. There would be, because businesses तेजी से change हो रहे हैं, इसलिए requirements तेजी से change हो रही हैं. So we needed to have a methodology that could very quickly develop softwares for us, and that could help us deliver to the people that we are the stakeholders of our businesses. Right? Agile manifesto tha ki individuals and interactions will be preferred over processes and tools. Working software will be preferred over comprehensive documentation. Customer collaboration will be preferred over contract negotiation. Responding to change will be preferred over change. Responding to change will be preferred over following a plan. Right? Then there were principles of agile method, customer involvement, incremental delivery. People were preferred and not processes. Embracing change, maintaining simplicity. And then there was applicability. कि कहाँ पे agile software method जो है agile development methodology applicable है. We talked about that as well. Obviously problems भी होते हैं, हर method के कुछ ना कुछ problems हैं. So there were problems of agile methods that were discussed as well. It can be difficult to keep the interest of the customer or involvement process क्योंकि customer involvement बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मुश्किल होता है customer को इतना ज्यादा involve करना. Right? Then software maintenance की हमने बात की थी. We talked about plan driven and agile development methodologies. We talked about this diagrammatic representation as well. XP, extreme programming, extreme approach to iterative development, जिसमें हम नए versions कई बना रहे होते हैं एक दिन में. तो we talked about that as well. Extreme programming की भी हमने release cycle की diagrammatic representation देखी थी. Extreme programming में भी incremental planning है. अच्छा, अब हमने कुछ जरा सा डिटेल में डिस्कशन करना है. डिटेल में शुरू कर रहे हैं इसमें. आप अभी तक कोई क्वेश्चन आपका लास्ट क्लास में जो लेक्चर आपने देखा, एवरीथिंग वाज क्लियर? वेरी गुड. चले जी. तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की हमने बात कर ली थी. व्हाट आर द प्रैक्टिसेस ऑफ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग? देयर आर इंक्रीमेंटल प्लानिंग. इंक्रीमेंटल प्लानिंग ऑब्वियसली वी टॉक्ड अबाउट इट कि जी आप पहले कम प्लान करते हैं, फिर और ज्यादा करते हैं, फिर और ज्यादा करते हैं, फिर और ज्यादा करते हैं. इंक्रीमेंटल प्लानिंग. स्मॉल रिलीजेस, जितनी काम हुआ होता है उतना रिलीज कर देते हैं, एंड वी ट्राई टू गेट द फीडबैक ऑफ द यूजर, और उसके बाद फिर आगे डेवलपमेंट की जाती है. द डिजाइन इज सिंपल. सिंपल डिजाइन रखना, मैंने लास्ट वीक भी बात की थी कि कितना मुश्किल है सिंपल डिजाइन रखना. टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट, दिस इज अ टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट, यानी पहले एक ऑटोमेटेड यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क इज यूज्ड टू राइट टेस्ट फॉर अ न्यू पीस ऑफ फंक्शनैलिटी बिफोर दैट फंक्शनैलिटी इटसेल्फ इज इंप्लीमेंटेड. यानी यूनिट टेस्टिंग की जाती है. टेस्टिंग की एक टाइप होती है, हमने शायद पहले इसकी बात नहीं की है. यूनिट टेस्टिंग यानी हर
इंडिविजुअल यूनिट को पहले इंटीग्रेशन से पहले, सिस्टम में मिलाने से पहले उसको टेस्ट किया जाता है। जैसे गाड़ी में टायर लगाने से पहले टायर को चेक किया जाता है, तो दैट इज द यूनिट टेस्टिंग ऑफ टायर। तो इसी तरह से जो भी मॉड्यूल बन रहा होता है सॉफ्टवेयर का, उसकी यूनिट टेस्टिंग की जाती है, सो दैट इट इज प्रूवन कि वो जो पार्ट है वो ठीक काम कर रहा था इंडिविजुअली। अब वो सिस्टम में लग के कैसे काम करेगा, उसके लिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट है, यानी पहले टेस्ट किया जाता है और उसके बाद फिर सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाता है या आगे बढ़ाया जाता है। रीफैक्टरिंग, रीफैक्टरिंग जैसे होती है कि हम फैक्टराइजेशन एक मैथमेटिक्स में या अलजेब्रा में या कैलकुलस में आप करते थे, तो उसमें होता ये है कि आप किसी भी इक्वेशन को रीफैक्टर कर लेते थे, यानी उसको अलग फॉर्म में लिख लेते थे। तो developers जो हैं in extreme programming, they are expected to refactor the code as soon as there are some code improvements found। ठीक है, ताकि कोड सिंपल रहे और कोड मेंटेनेबल रहे। फैक्टराइजेशन में भी तो यही होता था कि आप एक बड़ी इक्वेशन को छोटे छोटे फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते थे सो दैट इट इज सिंपल। तो वो रीफैक्टरिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी उसका मतलब यही होता है कि आप कोड को बजाय इसके कि कॉम्प्लेक्स रखें, आप कोड को ब्रेक डाउन करें स्मॉलर मैनेजेबल स्ट्रक्चर्स में, मैनेजेबल मॉड्यूल्स में। ठीक है, पेयर प्रोग्रामिंग एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है पेयर प्रोग्रामिंग। पेयर प्रोग्रामिंग में यू वर्क इन पेयर्स, डेवलपर वर्क इन पेयर्स, एक दूसरे का काम चेक करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एक बेहतर काम कर सके। ओनरशिप, क्योंकि पेयर्स में काम हो रहा होता है, तो ओनरशिप जो होती है वो मौजूद रहती है। ओनरशिप का मतलब ये है कि मैं ओन करता हूं कि ये काम मैंने किया है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है, और डेवलपर्स जो होते हैं वो हर एरिया पे काम करते हैं पूरे सिस्टम के, ताकि ये ना हो कि भाई मेरी तो एक्सपर्टीज सिर्फ इसी एरिया में है प्रोजेक्ट की, या सिर्फ इसी रीजन में है और इसी पर्टिकुलर मॉड्यूल में मैं एक्सपर्ट हूँ। ऐसा नहीं होता। व्हेन यू आर वर्किंग इन यूजिंग एन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, इसका मतलब ये होता है कि आप हर एरिया पे प्रोजेक्ट के काम करेंगे सो दैट there is no island of expertise develop and that all developers take responsibility for all the code। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कि हर डिपार्टमेंट में कुछ कुछ दिन कुछ लोगों को रखा जाता है ताकि वो हर एरिया की एक्सपर्टीज हासिल कर सके। तो इसी तरह से जो पेयर्स ऑफ डेवलपर्स हैं, क्योंकि पेयर प्रोग्रामिंग होती है, तो उसमें हर मॉड्यूल के ऊपर कुछ कुछ काम करना होता है सबको, ताकि आपको पूरे सिस्टम के बारे में पता हो। एंड ऑब्वियसली एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है मिलाना, जोड़ना, क्योंकि जैसे जैसे सिस्टम्स के डिफरेंट मॉड्यूल्स बनते जाते हैं आप उनको इंटीग्रेट करते जाते हैं लार्जर सिस्टम के साथ साथ। तो जैसे ही सिस्टम बनता है आप इंटीग्रेट कर देते हैं उसको पूरे बड़े वाले सिस्टम में। एंड ऑब्वियसली तमाम जो यूनिट्स होते हैं दे मस्ट पास द यूनिट टेस्टिंग इन ऑर्डर फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, सस्टेनेबल पेस, सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि जारी रखा रहना। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि जो चीज कंटिन्यूस बेसिस पे जारी रहे। ये कहते हैं कि जी लार्ज अमाउंट ऑफ ओवर टाइम आर नॉट कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल एज द नेट इफेक्ट इज ऑफन टू रिड्यूस कोड क्वालिटी एंड मीडियम टर्म प्रोडक्टिविटी। ओवर टाइम नहीं लगाते। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आजकल जहनों में कॉन्सेप्ट ये है कि जी वो डेवलपर है तो रात को 9-9 10-10 बजे तक जो है वो ऑफिस में बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एजाइल प्रोग्रामिंग या एजाइल डेवलपमेंट जो है वो डिस्करेज करती है कि ओवर टाइम जो है वो ना लगे, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि कोड क्वालिटी रिड्यूस होती है और जो प्रोडक्टिविटी है वो मीडियम लेवल तक पे चली जाती है। तो ये एक एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की और प्रैक्टिस है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो शुरू में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक प्रैक्टिस है ऑन साइट कस्टमर। कस्टमर का एक रिप्रेजेंटेटिव हर वक्त मौजूद होता है जहां डेवलपमेंट हो रही होती है। उसकी वजह यह है क्योंकि आइटरेटिव डेवलपमेंट है, कस्टमर की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और इन्वॉल्वमेंट ऑब्वियसली उस वक्त ही पॉसिबल होगी जब कस्टमर अवेलेबल। आप ये तो नहीं कर सकते कि बार बार कस्टमर को फोन करके पूछते रहें या उससे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे रहें हर वक्त। तो बेहतर ये होता है कि कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, ऑन साइट कस्टमर एक मौजूद रहे जो कि आपको गाइड करता रहे इन केस ऑफ एनीथिंग जो कि आप रिक्वायरमेंट्स के अलावा कर रहे हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट सिनेरियोस क्या क्या हो सकते हैं इसमें इन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। एक्सपी इसको लिखते हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को।
पिछली क्लास में भी मैंने बताया था विंडोज एक्सपी के बारे में। कस्टमर और यूजर इज पार्ट ऑफ द एक्सपी टीम एंड इज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग डिसीजंस ऑन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये बिल्कुल वही बात है जो हमने अभी आखिर में की कि ऑन साइट कस्टमर होना जरूरी है ताकि वो टीम का पार्ट रहे, एक्सपी टीम यानी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की टीम का पार्ट रहे, और उसका काम होता है डिसीजंस लेना। ठीक है, यूजर रिक्वायरमेंट्स जो है दे आर एक्सप्रेस्ड एज सिनेरियोज और यूजर स्टोरीज के यूजर यहाँ आएगा और ये काम करने की कोशिश करेगा, तो दैट इज अ स्टोरी, यानी यू बिल्ड अ स्टोरी बोर्ड इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग आउट अ रिक्वायरमेंट आउट लाउड, राइट? तो यू बिल्ड अ सिनेरियो, यू बिल्ड अ स्टोरी फॉर दैट, और ये कार्ड्स पे लिखी हुई होती हैं और डेवलपमेंट टीम को दी जाती हैं इम्प्लीमेंटेशन टास्क फिर बनाने के बाद। ये टास्क जो है वो फिर आप उनकी बेसिस पे शेड्यूल या कॉस्ट एस्टिमेट्स जो है वो बनाते हैं। The customers choose the stories for inclusion in the next release based on their priorities and schedule estimates, right? नहीं नहीं सर, यहाँ तक समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन स्टोरी, यानी जो हमने अभी बात की ना कि एजाइल डेवलपमेंट में देयर आर सिनेरियोज। ठीक है, तो प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन के लिए, यानी अगर एक सिस्टम है जो कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, जैसे डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, इस तरह से अगर एक कोई सिस्टम है जो कि आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है फॉर एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, तो उसके लिए क्या प्रोसेस जो है वो हो सकता है, उसके लिए क्या सिनेरियो। तो प्रिस्क्राइबिंग ऑफ मेडिकेशन की स्टोरी है, यानी कस्टमर या यूजर ये बता रहा है कि वो क्या एक्सपेक्ट करता है। वो कह रहा है द रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट मस्ट बी ओपन फॉर इनपुट, क्लिक ऑन मेडिकेशन फील्ड एंड सेलेक्ट ईदर करंट मेडिकेशन, न्यू मेडिकेशन और फॉर्मुलरी। इफ यू सेलेक्ट करंट मेडिकेशन एंड देयर इज अ होल सिनेरियो, पूरा सिनेरियो है, यू कैन गो थ्रू इट, और अब इसकी बेसिस पे फिर रिक्वायरमेंट्स बनाई जाती हैं। ठीक है, यानी टास्क बनाए जाते हैं उसकी बेसिस पे। पहला टास्क क्या है, चेंजिंग डोज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्रग। दूसरा टास्क क्या है, फॉर्मुलरी सिलेक्शन। तीसरा टास्क क्या है, डोज चेकिंग। यानी इन्हीं पैराग्राफ्स की बेसिस पे आप 3 टास्क डिफाइन कर लेते हैं कि ये काम होना है इस पर्टिकुलर सिनेरियो की बेसिस पे, यानी ये सॉफ्टवेयर इस तरह से बनेगा और उसमें ये ऑब्जेक्टिव्स परफॉर्म करने हैं किसी भी यूजर को। तो ये एक स्टोरी आ गई। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टोरी टास्क कार्ड्स बन गए। ठीक है, जिसमें टास्क डिफाइन है, हर कार्ड पे एक अलग टास्क डिफाइंड है जो कि हेल्प करता है डेवलपर की उस टास्क को इंप्लीमेंट करने में। ठीक है, अच्छा, अब चेंज की बात है, चेंज मैनेजमेंट की बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स है। एजाइल प्रोग्रामिंग की तरफ हम गए इसीलिए क्योंकि रिक्वायरमेंट्स बिजनेस की चेंज हो रही हैं, बट ऑब्वियसली इतनी तेजी से चेंज हो रही हैं रिक्वायरमेंट्स के एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में भी चेंज की इनकॉर्पोरेशन, चेंज को इनकॉर्पोरेट करने की फैसिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कन्वेंशनल विजडम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज टू डिजाइन फॉर चेंज। कन्वेंशनल विजडम भी यही कहता है कि जी यू डिजाइन फॉर चेंज, it is worth spending time and effort anticipating changes as this reduces cost later in the life cycle। यानी आप अगर घर भी बना रहे होते हैं तो आप बुनियादें कहते हैं कि यार जरा सी मजबूत डाल दो, हो सकता है बाद में एक मंजिल और बनानी पड़ जाए, तो यू एंटिसिपेट चेंज, ये चेंज शायद करना पड़ जाए। और कन्वेंशनल विजडम यही हमें कहता है कि यू एंटिसिपेट चेंज एंड यू बिल्ट योर सिस्टम सो दैट इट मे बी एबल टू अकोमोडेट चेंज लेटर। ठीक है, but extreme programming however maintains that this is not worthwhile as changes cannot be reliably anticipated। XP ये कहता है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग ये कहती है कि चेंजेस जो हैं वो हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते, रिलायबली कर तो सकते हैं, लेकिन बहुत दफा होता यह है कि हमारी एंटिसिपेशन गलत हो जाती है। तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप चेंजेस के लिए सिस्टम को तैयार करें, रादर इट प्रपोजेस कांस्टेंट कोड इंप्रूवमेंट्स। यानी ये कहता है कि आप बार बार रीफैक्टरिंग करते रहें कोड को ताकि चेंजेस जो है वो इजियर हो जाए जब आपको करनी पड़े। क्लियर है ये बात? तो एक्सपी प्राइमरीली तो डिस्करेज करता है उस तरह की चेंजेस को कि आप चेंज के लिए गुंजाइश छोड़ दें, मगर वो ये जरूर कहता है कि आप कोड की रीफैक्टरिंग करते रहें, यानी कोड को सिंपल करते रहें ताकि जब किसी चेंज को इंप्लीमेंट करना है तो दैट कैन बी मच इजियर। रीफैक्टरिंग क्या है भाई? अब रीफैक्टरिंग हमने तो इक्वेशन से समझ ली थी, रीफैक्टरिंग क्या है। प्रोग्रामिंग टीम लुक्स फॉर पॉसिबल सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट्स एंड मेक दीस इंप्रूवमेंट्स इवन वेयर देयर इज नो इमीडिएट नीड फॉर देम। यानी ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है कि जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत ना भी है वहां पे अगर आपको लग रहा है कि इंप्रूवमेंट हो सकती है तो कर दो, ऑल्दो देयर इज नो इमीडिएट नीड।
Improvements are understandability of the software and so reduces the need, improve the understandability of the software and reduces the need for documentation. यानी सॉफ्टवेयर जो है वो खुद ब खुद समझ में आने वाला हो जाता है और बजाय इसके कि किसी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़े, जो कि मैनिफेस्टो है एजाइल डेवलपमेंट का कि यू प्रेफर पीपल एंड प्रोसेस ओवर डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। तो डॉक्यूमेंटेशन कम हो जाए, सिस्टम देख के ही समझ में आने लगे। अच्छा, चेंजेस अब इजियर रीफैक्टरिंग की वजह से क्यों जाती है? क्योंकि कोड जो है वो सिंपल होता है, वेल स्ट्रक्चर्ड होता है और क्लियर होता है। Some changes obviously require architecture refactoring and this is much more expensive. यानी architecture जब आपको change करना पड़ता है system का, तो that is when it becomes much more difficult and much more expensive as well. अच्छा, अब एग्जाम्पल ऑफ रिफैक्टरिंग जरूरी नहीं है कि ये आपको समझ में भी आए, मगर सुन लीजिए। समझ में क्यों नहीं आए? क्योंकि अभी शायद आपने उस स्टेज तक का किसी प्रोग्रामिंग में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपने उस तरह से पढ़ी नहीं है। वैसे मैं बता देता हूं आपको कि रिफैक्टरिंग की एग्जांपल्स हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ क्लास हायरार्की टू रिमूव डुप्लीकेट कोड। क्लासेस होती हैं कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से, तो रीऑर्गेनाइजेशन क्लास हायरार्की की आप करते हैं ताकि डुप्लीकेट कोड को रिमूव किया जा सके। tidying up and renaming attributes and methods to make them easier to understand। जो attributes आप रखते हैं या अगर फॉर एग्जांपल समझ लें फंक्शंस के नाम रखते हैं, वो ऐसे रखते हैं कि फौरन समझ में आ जाए कि ये फंक्शन किस चीज का है। या एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए कि आप अगर कोई एक वर्ड फाइल सेव करते हैं तो उसका नाम अगर सिर्फ 1 2 3 रखेंगे तो आपको देखने से नहीं पता चलेगा कि ये काम क्या करती है। अगर उसका नाम आप वो रख देंगे जो कंटेंट उसमें है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि उस फाइल में क्या हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से आप फंक्शन का नाम पूरा एक बहुत बड़ा नाम तो नहीं रख सकते, लेकिन ये कि जो छोटा नाम भी रखें उसको इतना अंडरस्टैंडेबल रखें कि उसको देखने से, उसको पढ़ने से ये पता चल जाए कि ये फंक्शन किस चीज का है। दैट इज व्हाट refactoring is also about। replacement of inline code with calls to methods that have been included in the program library। अच्छा, इनलाइन कोड लिखने के बजाय कोशिश ये करते हैं कि फंक्शंस को कॉल कर लें। इनलाइन कोड का मतलब ये होता है कि आपने उसी जगह पे लिखा हुआ वो सारा कोड, और फंक्शन कॉल का मतलब ये होता है कि आपने वहां सिर्फ कॉल किया हुआ वो फंक्शन और वो फंक्शन लिखा हुआ कहीं और हो, यानी वो प्रोग्राम लाइब्रेरी में मौजूद है। तो इससे होता यह है कि कॉल करना, रीयूज करना, जो रीयूज ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट रीयूज ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, वो भी इंप्लीमेंट हो जाती है एक तरह से। And that is what the purpose of agile methodology is, कि आप जल्दी काम करें, you are able to respond to any changing environment। So agile methods are incremental delivery methods, development methods that focus on rapid development, frequent release of software, reducing process overheads and producing quality code, involve the customer directly in the development process। The decision on whether to use an agile or a plan-driven approach should be depending on the type of software being developed। हमने इसकी बात की थी। It is well known agile method, extreme programming that integrates a range of good programming practices such as frequent release of software, continuous software improvement and customer participation in the development team। Right? तो अभी तक कोई चीज जो आपको क्लियर ना हुई हो? सब क्लियर है? यस सर। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा ख्याल है कि आज हम यहीं तक रखते हैं। छोटी क्लास थी, मैं कोशिश करूंगा कि रिकॉर्ड करके भेज दूं आप लोगों के लिए, क्योंकि इंटरेक्शन तो नहीं है तो उससे कोई फायदा नहीं है। ऑन मतलब लाइव क्लास से कोई फायदा नहीं है। यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डेड लेक्चर एज वेल। तो दिस इज लेक्चर 2, दिस वाज लेक्चर 2 ऑन एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आई होप के इसमें जो भी चीजें हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी।